Greetings to all students. Today we have second lesson of Flamingo book. The name of the story is Lost Spring, written by Anis Jung. About the author, Anis Jung was born in 1944. She belongs to an aristocratic family of poets. She was born in Rourkela and she has spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received education in Hyderabad and US. Her parents were also writers. She began her career as a writer in India. She was author, journalist, and columnist in India and abroad. Editor of Youth Times and columnist for major newspaper in India and abroad. She was the author of the books like Unveiling India, Night of the New Moon, Seven Sisters, Breaking the Silence, etc. The theme of this lesson: the plight of street children forced into labor early in life and denied opportunity of schooling. Sub-theme of this story is the callousness of society and the political class to the suffering of the poor. Means the plight of street children, the children who were deprived, who were forced to do labor in their early life, they have been denied from the school. They were not allowed to study in the school. And we also find the cruelty of the society, that nobody was taking the step, nobody was polite with these children who were deprived from the education. Let's read about the lesson. Very first I would like to tell you the story was published in 2005. About this story, this lesson is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Childhood, you know that the best time of person's life when they are child. Lost, something which is no longer in your possession, that is lost. So it means that spring has been referred as a childhood here. So here means that's a childhood is the best time of any person's life, and that has been lost. It is no longer in possession. And the childhood has been referred by the word spring. So spring, I would like to tell you, that's the best season of a year. It is full of color, fragrance, freshness, renewal and growth. Similarly, the childhood of human life is often linked to spring, as it marks the beginning of human life full of joy, pleasure, play and growth. The story brings out the depravity of child labor in a very telling way. She analyzes grinding poverty and tradition which condemn the poor children to a life of exploitation. The narrator expresses her concern over the exploitation of childhood in hazardous jobs like rag picking and bangle making. She also conveys a message through this story that it is a dire need to provide these poverty-stricken children opportunity to dream and to live a life of dignity. Some expressions are given in the beginning of the story. The expressions which are used in the story, it is given with the meaning. Looking for, it means searching. Look for, that's a phrase. एक phrase है, इसका मतलब क्या होता है? ढूंढना. Perpetual state of poverty, that means constant state of poverty. Slog their daylight hours, it means work hard and steadily. It means continuous work करते रहना, that is work hard and steadily. Next word, impose the baggage on the child, that means burden with responsibility. Next, dark hutments, that is unhygienic shelters or huts.
roof over his head, that means the shelter or the house. This was all about the expressions which was given in the beginning of the story. I had told you all the meanings. Now let's begin the story. Now student, look at the main character of the story. The main character of the story is Saheb. He is garbage picker and the full name of Saheb is Saheb-e-Alam, which means the Lord of the Universe. And the second is the author herself, Anis Jung. Now let's read the story. The story is starting with the statement, sometimes I find a rupee in the garbage. This is the spoken words, these are the spoken words of Saheb, the main character of the story. वो कहता है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी उसको गार्बेज में जो वेस्ट मटेरियल है उसमें उसको कभी कभी रुपीज़ मिलते हैं. नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन, व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Why do you do this? This is the statement of narrator. तो यहाँ पे नरेटर जो है वो क्वेश्चन करती हैं कि why do you do this? तुम ये चीज़ें क्यों करते हो? I ask साहेब whom I encounter every morning. उन्होंने जो है इसको encounter मीन्स क्या होता है? come across. मीट सडनली, किसी से अचानक मिलना, नॉट इन अ प्लान्ड वे, तो उसे क्या बोलते हैं? एनकाउंटर. तो इन्होंने साहेब से पूछा हुम, जिससे कि आई मतलब जिससे ये एनकाउंटर करती हैं, जिससे ये सडनली मिलती हैं. एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह मिलती हैं. स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, जो क्या करता है? स्क्राउंजिंग मीन्स क्या होता है? ही इज़ लुकिंग फॉर, ही इज़ सर्चिंग फॉर, वो ढूंढता हुआ रहता है. फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, गार्बेज में जो है कुछ क्वाइंस वगैरह. गोल्ड यहाँ पे सेंस क्या है कि मनी या कुछ वैल्यूबल थिंग्स जो गार्बेज के ढेर में. गार्बेज में क्या होता है? जो वेस्ट आइटम्स होते हैं लाइक फूड, पेपर एक्सेट्रा, जो वेस्ट होते हैं फूड या पेपर्स वगैरह, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें वो जो है कुछ उसमें पीसेस चीज़ें ढूंढते हैं. ऑफ माई नेबरहुड, जो नरेटर के आसपास जो डैम्प है, जो वेस्ट मटेरियल का जो डैम्प है, जो एक कलेक्शन है, उसी डंप्स में जो है, उस डंप्स में जा कर के वो सारी चीज़ें ढूंढते हैं. डंप मीन्स क्या होता है कि कलेक्शन, एक वहाँ पे वेस्ट का कलेक्शन जो रहता है, उसी कलेक्शन में वो जा कर के वो साहब जाके ढूंढता है. तो उस साहब से उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब ने बहुत समय पहले ही अपना घर छोड़ दिया था. सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और उसका जो घर था वो क्या था कि हिज होम वॉज इन ढाका एंड इट वॉज इन द मिडिल लश ऑफ ग्रीन फील्ड्स. उसका घर क्या था कि ढाका में था, और जो कि हरे भरे खेतों के बीच में जो है उसका घर हुआ करता था. ढाका जो बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश ढाका में उसका घर था. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और अब उसका घर जो है दूर दूर तक उसकी मेमोरी में भी नहीं था. मतलब उसे अब बिल्कुल भी अपने घर के बारे में याद नहीं था. बिकॉज ही हैड लेफ्ट इट मेनी ईयर्स एगो, क्योंकि उसने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था. एंड दैट्स वाई ही डिड नॉट रिमेंबर इट एनी मोर. मतलब एक डिस्टेंट मेमोरी में भी नहीं था, वो एकदम पूरी तरह से कम्प्लीटली वो जो है फॉरगेटन था, वो एकदम भूल चुका था. There were many storms that swept away their fields and homes. There were many storms, वहाँ पर कई बार जो है तूफ़ान आए थे. That swept away, जिसने जो है उसके घर को ख़त्म कर दिया. Fields, उसके घर को, उसके खेत को पूरी तरह से तबाह कर दिया. ऐसा उसकी किसने बताया? His mother tells him. ऐसा उसकी माँ उसे बताती है कि जो है उसकी मदर ने उसे बताया है. हिज मदर हैड टोल्ड हिम दैट देयर वर मेनी स्टॉर्म्स विच डिस्ट्रॉयड दियर होम्स एंड फील्ड्स, जिसमें उसकी माँ ने बताया कि उसके होम्स और फील्ड जो है ड्यू टू द स्टॉर्म जो है डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं. सो दे लेफ्ट दियर होम, इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया. दैट्स वाई दे लेफ्ट होम लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. और अभी वो लोग क्या करते हैं कि दे हैड शिफ्टेड इन अ बिग सिटी, वो एक बिग सिटी में शिफ्ट हो गए हैं. इन सर्च ऑफ गोल्ड, जहाँ पे वो इस तरह से कूड़ों के बीच में जो है कुछ वैल्यूबल चीज़ों को ढूंढते हैं और फिर उसको सेल करते हैं. तो इस तरह से अब जो है उनकी लाइफ हो चुकी है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स. मटर मीन्स क्या होता है कि बहुत ही धीमे धीमे बोलना, टू स्पीक इन अ लो वॉइस. तो उसने बहुत ही धीमे, बहुत ही जो है
एक लो वॉइस में उसने रिप्लाई किया कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, उसके पास इसके सिवाय कुछ और करने को नहीं है। लुकिंग अवे, सिर्फ मतलब चीज़ों को दूर दूर जा कर के देखना, है ना, यही सब उसके पास जो है काम रह गया है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, ग्लिबली मीन्स क्या होता है कि बिना कुछ सोचे समझे बहुत जल्दी से बोल देना, टू स्पीक इन अ फ्लुएंट वे विदाउट थिंकिंग और विदाउट केयरफुल थाट। सो द नरेटर स्पोक कि गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एक्टिव मस्ट साउंड। हॉलो मीन्स क्या होता है, मीनिंगलेस। और फिर थोड़ी देर बाद, जैसे उन्होंने नरेटर ने इस बात को बोला कि स्कूल जाओ, फिर तो थोड़ी देर बाद उन्होंने रियलाइज़ किया, इसको तुरंत ही रियलाइज़ किया कि हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो उन्होंने एडवाइस दी है वो कितनी मीनिंगलेस है। एक जो है रैक पिकर जो है, जो वेस्ट को जो है कलेक्ट करता है मॉर्निंग में उठ करके, और जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो वो कैसे स्कूल की फ़ीस को अफोर्ड करेगा। तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर साहेब, साहेब के लिए बहुत इम्पॉसिबल था, उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये थोड़ी देर बाद जो है नरेटर को रियलाइज़ हुआ आफ्टर क्वेश्चनिंग, आफ्टर सजेस्टिंग द मीन्स आफ्टर सजेस्टिंग साहेब को सजेस्ट करने के बाद उनको ये रियलाइज़ होता है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। और साहब ने यहाँ पे रिप्लाई में बोला कि उसके आसपास जो है कोई भी स्कूल नहीं है। उसने रिप्लाई में बोला कि दैट देयर आर नो स्कूल इन हिज एरिया, उसके एरिया में कोई घर नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, वेयर ही लिव्स, जहाँ वो रहता है उसके आसपास कोई स्कूल नहीं है। एंड ही एश्योर्स हर, और वो नरेटर को एश्योर करता है कि जब कभी कोई स्कूल बन जाएगा तो वो स्कूल को ज्वाइन करेगा, दैट फॉर श्योर। मतलब एकदम ये निश्चित है कि ही विल गो टू स्कूल व्हेन वन इज़ बिल्ट नियर हिज हाउस, जब उसके घर के आसपास कोई स्कूल बन जाएगा तब वो स्कूल जाएगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो मजाक करते हुए यहाँ पर नरेटर ने कहा कि जो है अगर मैं अपना एक स्कूल बनाऊँ तो क्या तुम मेरे स्कूल में आओगे। तो नरेटर ने यहाँ पे जोकिंगली उसने ऐसे ही पूछा कि इफ़ सी ओपनड अ स्कूल वुड ही अटेंड इट, अगर वो एक स्कूल बनाती है या एक स्कूल अगर वो बनवाएगी तो क्या वो स्कूल उसके आएगा। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और साहब ने जो है मुस्कुराते हुए उसने एग्री किया कि हाँ वो ज्वाइन करेगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जब नरेटर उधर से कहीं से पास हो रही थी, तो जब नरेटर को जो है साहब ने देखा तो वो दौड़ता हुआ आया, ही रन्स अप टू हर, वो उसके पास दौड़ता हुआ आया, एंड टू आस्क वेदर हर स्कूल इज़ रेडी, कि क्या उसका स्कूल तैयार हो चुका है। फिर राइटर ने यहाँ पे क्या बोला, इट टेक्स अ लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। किसी स्कूल को बनने में क्या होता है, कुछ समय लगता है, कुछ ज़्यादा समय लगता है। तो इन रिप्लाई द राइटर रिप्लाइड की जो है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड अ स्कूल, किसी स्कूल को बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, मतलब उन्होंने रिप्लाई में ये बोला और बहुत ही ज़्यादा उनको अपने आप में एम्बेरस फील हुआ, बिकॉज उन्होंने ये बात जो बोल दी, हालांकि उनका स्कूल खोलने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये एक जोक में उन्होंने ऐसे बोल दिया, साहब से मजाक करते हुए, छोटा बच्चा था उससे उन्होंने जो है इस तरह से बोल दिया। तो ये बहुत ही एक जोकिंगली उन्होंने इस बात को कही थी, और ऐसा कोई उनका इंटेंशन नहीं था स्कूल बनवाने का। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। यहाँ पे ब्लीक मीन्स क्या होता है, एम्प्टी। ब्लीक मीन्स क्या होता है, एम्प्टी, हॉलो, बिल्कुल जो है इस तरह का जो उसका वर्ल्ड है जहाँ पे कोई मतलब इस तरह से हेल्प करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो जो नरेटर हैं उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि साहब वॉज नॉट हर्ट, इससे जो है साहब बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होता है, क्योंकि ही वॉज यूज टू सच फॉल्स प्रोमिसेस, क्योंकि वो एवरी डे जो है अपने लाइफ में उसको इस तरह से बहुत सारे फॉल्स प्रोमिसेस लोगों से मिलते हैं, क्योंकि हर लोग उससे कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे मतलब प्रोमिसेस करते हैं, तो इसका वो यूज टू हो चुका है। एज दे एग्जिस्टेड इन अ लार्ज नंबर्स इन हिज एम्प्टी वर्ल्ड, क्योंकि इस तरह के उसके
आसपास जो है कई सारे लोग रहते हैं, कई सारे लोगों से वो ये जैसे एनकाउंटर कम अक्रॉस एवरीडे, वो सारे मतलब इस तरह से कई लोगों से मिलता है जहाँ पे लोग उसको बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हुए दिखते हैं, तो वो उसका यूज टू हो गया है, तो उससे वो हर्ट नहीं हुआ था, बस वो आकर के जो है उसने कंफर्म किया। एंड उसके बाद जो है जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने क्या ही सी फेल्ट असेम्ड, उनको अपने आप में असेम्ड फील होता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, जब कई महीनों बीत गए, क्या कहते हैं इसको, साहब को जानते हुए कई महीने बीत गए, और यहाँ पे उन्होंने जो है आई आस्क हिम हिज नेम, जब कई महीने बीत गए तो उन्होंने जो है नरेटर ने उसका नाम पूछा, यहाँ पे साहब का नाम पूछा कि उसका नाम क्या है। सी आस्क्ड हिज नेम, उन्होंने जो है उसका नाम पूछा, तो उसने क्या बोला कि साहिब आलम, ही अनाउंसेस साहिब आलम, तब उसने जो है ही रिप्लाइड कि उसका नाम जो है साहिब आलम है। ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स, उसको मालूम भी नहीं कि इस नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको ये इसका अर्थ पता होता तो ही मीन्स इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो अगर क्या होता है कि यहाँ पे राइटर मतलब सोचती हैं अपने मन में, मतलब सी थॉट हर सेल्फ दैट द बॉय डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम, कि जो ये लड़का है उसको अपने नाम का मतलब नहीं मालूम है। एंड इफ़ ही केम टू नो, अगर इस बात को उसे पता चले कि दैट हिज नेम मीन टू लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि उसके नाम का मतलब है कि इस यूनिवर्स का लॉर्ड होना, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का जो है भगवान होना, स्वामी होना, उसको जो है ईश्वर होना, गॉड होना, अगर उसको ये बात पता चले तो ही वुड नॉट बी एबल टू बिलीव इट, तो उसको विश्वास नहीं होगा कि उसके नाम का मतलब ये है। ये एक बहुत बड़ी आयरनी है यहाँ पे कि जो है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स उसका नाम है, एंड ही हिमसेल्फ इज़ अ रैग पिकर, और वो क्या है, रैग पिकर एक जो है वेस्ट कलेक्टर है, वो वेस्ट को कलेक्ट करता है, तो उसको अपने नाम का ये विश्वास, मतलब अपने नाम की मीनिंग का ये विश्वास ही नहीं होगा कि उसके नाम का मतलब ये हो सकता है, क्योंकि उसका नाम तो क्या है, हिज नेम वॉज अपोजिट टू हिज लाइफ, जिस लाइफ में वो जी रहा है उस लाइफ से उसका जो नाम है वो बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon over the months. I have come to recognize each of them. तो यहाँ पे क्या है कि ही वेंट अराउंड द स्ट्रीट्स, वो जो है गलियों में घूमता था विद द सम बॉयज़, विद द ग्रुप ऑफ सम बॉयज़, वहाँ पे कुछ उसके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, और वो सभी फ्रेंड्स क्या थे कि दे वॉक इन अ स्ट्रीट, वो क्या करते थे, स्ट्रीट में वॉक करते थे विदाउट एनी फुटवियर, बिना पैर में कुछ पहने हुए, बेयर फुटेड, मतलब बेयर फुट जो है वो वॉक करते थे। दे अपीयर्ड इन द मॉर्निंग, वो एकदम सुबह दिखाई देते थे सारे बच्चे, क्योंकि वो जो है वेस्ट जो है मॉर्निंग में ही वो कलेक्ट करते थे, लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे क्या होता है सुबह चिड़ियाँ निकलती हैं और वो दानों को चुगती हैं और फिर दोपहर तक जो है अपने नेस्ट में वापस आ जाती हैं, तो उसी तरीके से जो है ये बच्चों का जो एक ग्रुप था, ये बच्चे सुबह निकलते थे और दोपहर तक अपने जो है घर वापस हो जाते थे, लाइक द बर्ड, यहाँ पे बर्ड से कंपेयर किया गया है इन सारे बच्चों को। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि फिगर ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे सिमली का यूज हुआ है, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, तो ये सिमली का यूज यहाँ पे हुआ है। तो बच्चे जो है, जो ग्रुप ऑफ बॉयज़ थे वो एकदम सुबह निकलते थे और वो एकदम जैसे सुबह चिड़ियाँ उड़ती हैं और जो है ग्रेन्स को जो है कलेक्ट करके वापस जो है दोपहर तक घर पे चली जाती हैं, उसी तरह से ये बच्चे सुबह सुबह निकलते थे और दोपहर तक अपने घर को वापस हो जाते थे। और राइटर ने क्या किया, सी कुड रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ देम एज सी हैड बीन सीइंग देम फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि वो पास्ट के कुछ फ्यू मंथ से जो है कुछ महीनों से वो लगातार उन बच्चों से मिल रही हैं। सी इज़ कमिंग अक्रॉस विद ऑल दोज चिल्ड्रन, उन सारे बच्चों से वो मिलती हैं, तो धीरे धीरे वो सारे बच्चों को रिकॉग्नाइज करने लगी, पहचानने लगी और उनसे बात करने लगी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, उन्होंने जो है उस जो ग्रुप में बच्चे थे उसमें से किसी एक से पूछा कि तुम लोग जो है स्लीपर्स क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, और फिर उस बॉय ने सिंपली रिप्लाई किया कि हिज मदर डिड नॉट गेट देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि उसकी माँ जो है उसे अलमारी से जो है जो उसके सेल्फ हैं, जहाँ पे मतलब सेल्फ क्या होता है कि एक
एक केस होता है जिसमें सारे शूज़ और स्लीपर्स रखे जाते हैं, तो वो उसने कहा कि सेल्फ से उसकी मदर उसको निकाल के देती ही नहीं है, एज दे वर बियॉन्ड हिज रीच ही डिड नॉट वियर देम। और सेल्फ जो है वो वहाँ तो वो पहुँच नहीं सकता है, उसकी रीच से, उसके अप्रोच से वो सेल्फ काफ़ी ऊंचा है, वहाँ तो उसका हाथ नहीं पहुँचता, इसलिए वो सेल्फ से स्लीपर्स नहीं निकाल पाता है, इसलिए वो जो है बेयर फुट घूमता है, इसलिए वो जो है बिना स्लीपर्स के जो है बाहर घूमता रहता है। इवन इफ सी डिड नॉट ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। और तभी वहाँ पे एक दूसरा लड़का खड़ा होता है और वो जो है बीच में इंटरप्ट करते हुए उसको बोलता है कि जो है अगर इसकी माँ जो है अगर इसको शूज़ दे भी दें तो ये बिल्कुल पहनेगा नहीं और उस शूज़ को क्या करेगा, ही विल थ्रो दैट अवे, उसको जो है ये उठा के फेंक देगा। तो वो यहाँ पे क्या होता है, कंफर्म करता है कि जो है अगर इसकी माँ इसको शूज़ दे भी देंगी तो ये पहनेगा नहीं बल्कि उसको क्या करेगा, फेंक देगा। और ये जो लड़का बता रहा है ही हिमसेल्फ वॉज वियरिंग अ डिफरेंट शू इन ईच फुट, अपने अलग अलग फुट में, अलग दोनों पैरों में अलग अलग तरह की स्लीपर्स मतलब शूज़ को पहने हुए था, मतलब उसके जो शूज़ थे वो बिल्कुल डिफ़र थे, वो मैच नहीं कर रहे थे, दैट डू नॉट मैच। एक पैर में दूसरे रंग का जूता पहना हुआ था और दूसरे पैर में दूसरे रंग का जूता पहना हुआ था, तो बिल्कुल जो है डिफरेंट शूज़ वो पहन करके खड़ा हुआ था और बोलता था अगर इसकी माँ इसको शूज़ देंगी भी तब भी ये उठा करके फेंक देगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। और व्हेन द नरेटर आस्क्ड द सेकेंड बॉय, जिसने बताया कि अगर इसको शूज़ इसकी मदर देती भी हैं तो ये उठा के फेंक देगा, तो उसने जो है कहा, तब उससे जो है नरेटर ने पूछा कि जो है तुमने इतना जो है डिसमैच शूज़ क्यों पहना है ना। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, तो यहाँ पे नरेटर क्या करती हैं, उसके शूज़ पे कमेंट करती हैं और कहती हैं कि तो उसने जो है क्यों डिसमैच शूज़ पहने हुए हैं। तो उस पर वो क्या करता है, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। तब वो क्या करता है, अपने शूज़ को सफल करता है, सफल उसको जो है हाइड करने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है कि अपने एक पैर को हाइड करके दूसरे पैर को ऊपर करना, तो वो अपने दोनों मतलब पैर को हाइड करने की कोशिश करता है जिससे नरेटर उसके दोनों डिसमैच शूज़ को ना देख पाए। और वो कुछ कहता नहीं है एंड सेज नथिंग। आई वांट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। और तभी वहाँ पे एक थर्ड लड़का खड़ा होता है, ही स्पोक, वो वहाँ पे बोलता है कि दैट ही वॉज ईगर टू गेट अ पेयर ऑफ शूज़ एज ही हैड नेवर ओन्ड इन हिज लाइफ, क्योंकि उसने कभी कोई जूता नहीं पहना है, कभी कोई शूज़ नहीं पहना है, तो वो बोलता है कि उसे एक पेयर ऑफ शूज़ चाहिए और वो उसको पाने के लिए बहुत ही ईगर है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। और यहाँ पे नरेटर ने जो है कई जो है प्लेसेस पे उन्होंने जर्नी की है, कंट्री के बहुत सारे पार्ट में। सी हैड ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री, बहुत सारे प्लेसेस पे वो गई हैं। एंड सी हैज़ सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, उन्होंने देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चों को बिना स्लीपर्स और शूज़ के घूमते हुए इन सिटीज़ में भी, ऑन विलेज रोड्स और विलेज के रोड पर भी इन्होंने देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं, वन एक्सप्लेनेशन मीन्स क्या होता है, एक तरफ ये बात होती है या कहा जाता है उन लोगों के थ्रू कि ये मतलब बेयरफुट रहना ये उनका ट्रेडिशन है, एक परंपरा है उनकी, एक उनका कल्चर है, नंगे पैर घूमना, बिना स्लीपर्स और शूज़ के घूमना। तो ये उनका एक कल्चर शो करता है कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये उनका एक कल्चर है, बिना शूज़ और स्लीपर्स के चलना ये उनका एक कल्चर है। लेकिन दूसरी तरफ और भी बात होती है, आई वॉन्डर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन यहाँ पे नरेटर क्या होता है कि मतलब ऐसा वो लोग कहते हैं कि ये मतलब विदाउट शूज़ और स्लीपर्स चलना ये उनका एक ट्रेडिशन है, ये उनकी परंपरा है, लेकिन ये वन एक्सप्लेनेशन है। बट यहाँ पे नरेटर जो हैं वो सरप्राइज होती हैं कि इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि ये शायद हो सकता है मतलब इसकी रियलिटी कुछ और हो सकती है। मतलब व्हेन सी कंक्लूडेड दी ऑल थिंग्स, जब वो कंक्लूड करती हैं, वो एक निष्कर्ष निकालती हैं, तो उसकी रीज़न, उसके पीछे का रीज़न जो उनको पता लगता है, दैट द रीज़न ऑफ इट बीइंग अ ट्रेडिशन वाज अ मेयर एक्सक्यूज़,
कि मतलब जब नरेटर इसको कंक्लूड करती हैं, वो एक निष्कर्ष पे आती हैं, तो वो ये पाती हैं कि जो ट्रेडिशन यहाँ पे उन्होंने कहा दैट्स अ मियर एक्सक्यूज़, दैट्स अ फॉल्स स्टोरी, वो एक सिर्फ एक बहाना है, और बल्कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, दे आर हाइडिंग द फैक्ट, ये लोग सच्चाई को छुपा रहे हैं, दे वर सो पुअर एंड दे कुड नॉट अफोर्ड फुटवियर, बल्कि ये लोग जो हैं ये फुटवियर को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं और ये इस सच्चाई को छुपाते हैं, ये कह करके कि ये ट्रेडिशन है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, और तभी नरेटर जो है वो रिकॉल करती हैं एक स्टोरी जिसको जो है उडुपी के एक आदमी ने सुनाई थी इनको। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. As a young boy, जब वो एक छोटा लड़का था, he would go to school past an old temple. वो एक जो है ओल्ड टेम्पल के बाद में जो है उसका स्कूल पढ़ता था। तो जब वो छोटा था तो वो स्कूल जाया करता था, और आफ्टर क्रॉसिंग अ टेम्पल, यहाँ पे पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल मीन्स क्या होता है कि एक पुराने मंदिर को क्रॉस करके वो अपने स्कूल जाता था। और उस टेम्पल में क्या था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, और जो स्कूल से पहले जो टेम्पल पढ़ता था वहाँ पे उसके फादर क्या थे, प्रीस्ट थे, वो पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, तभी स्कूल जाते समय वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकता था, टेम्पल में, मंदिर में रुकता था, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और वहाँ पे एक पेयर शूज़ के लिए जो है प्रेयर करता था कि मतलब गॉडेस जो है उसको, या गॉड जो है उसको एक पेयर ऑफ शूज़ जो है दिलवा दें। तो इसके लिए वो प्रे करता था कि उसको एक पेयर शूज़ मिल जाए, मतलब एक जोड़े जूते मिल जाए, उसके लिए वो प्रे करता था। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, और फिर जो है जब ये कहानी उसने सुनाई थी तो उसके बाद जो है नरेटर 30 years के बाद, 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन, तब नरेटर जो है उस टाउन को विजिट करने जाती हैं, एंड द टेम्पल, उस टेम्पल को विजिट करने के लिए जाती हैं, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, और जो अभी पूरी तरह से क्या हो चुका है, मतलब जब वहाँ पे वो जाती हैं तो जो टेम्पल है और जो वो विलेज है जहाँ पे वो पहले 30 years पहले वो गई हुई थी, तो जब आफ्टर 30 years वो वहाँ पे विज़िट करती हैं तो द प्लेस वाज नियरली एम्प्टी, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, और लगभग जो है सारी चीज़ें जो है डिसोलेट हो जाती हैं, सभी चीज़ लगभग जो है वैनिश हो जाती हैं। दैट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी, जब कोई चीज़ वहाँ पे खाली हो जाता है, मतलब बहुत सारी जैसे पहले जैसी चीज़ें थी वैसे उसको मतलब नरेटर को वहाँ पे नहीं मिलती हैं। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और मंदिर के पीछे, इन द बैकयार्ड मीन्स क्या होता है कि जो एक स्पेस रहता है मंदिर के पीछे जो है जा कर के, तो वहाँ पे मंदिर के पीछे जाने के बाद जो है टेम्पल के वहाँ पे प्लास्टिक चेयर रखी हुई थी, दैट वाज इन रेड एंड वाइट कलर। तो जब यहाँ पे नरेटर जो है वो मंदिर के पीछे जाती हैं जहाँ पे जो है पहले प्रीस्ट रहा करता था, तो वहाँ पे भी एक न्यू प्रीस्ट रहता है, एक नया पुजारी रहता है, और वहाँ पे कुछ लाल या सफ़ेद रंग की जो है चेयर्स रखी हुई थी। और तभी वहाँ पे क्या होता है कि अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और तभी एक छोटा सा लड़का जो है जो कि यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, और उसने सॉक्स और शूज़ पहना हुआ है, अराइव्ड पैंटिंग, वो वहाँ पे हाँफते हुए, मतलब पैंटिंग मीन्स क्या होता है कि टेकिंग अ क्विक एंड डीप ब्रीथ, बहुत तेज़ी से सांस लेना, तो बहुत तेज़ी से सांस लेते हुए वो वहाँ पर दौड़ते हुए आता है, एंड थ्रू हीज स्कूल बैग, और वो अपना स्कूल बैग वहाँ पर फेंकता है, ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड पे जो है अपने बैग को वो फेंकता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, और जब यहाँ पे नरेटर ने उस लड़के को देखा तो आई रिमेंबर्ड, तब इन्होंने जो 30 years पहले जो उडुपी का एक मैन मिला हुआ था जो कि एक प्रीस्ट का सन था, तो उस प्रीस्ट के सन ने क्या की थी, प्रेयर की थी, उसने प्रे किया था कि गॉड जो है उसको, गॉडेस जो है एक शूज़, अ पेयर ऑफ शूज़ के लिए उसने जो है प्रे किया था, एंड ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, और अभी जो है उसको वो पेयर ऑफ शूज़ मिल चुका है। लेट मी नेवर लूज़ देम, और फिर वो जो है अब उसकी प्रार्थना क्या होगी, मतलब पहले 30 years पहले उसने प्रार्थना की थी कि उसको एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए, और अब उसकी प्रार्थना ये होगी कि अब ये शूज़ जो है कभी भी जाने ना पाए। तो इस तरह से जो है वो प्रेयर करता है कि जो है 30 years पहले कि उसको शूज़ मिल जाए, और फिर बाद में कहता है कि जो है ये शूज़ कभी जाने ना पाए। द
द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और गॉड ने लगता है उसकी प्रेयर जो है पूरी कर दी थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, और जो ये छोटा लड़का था जो अभी नए प्रीस्ट का जो बेटा था, नाउ वोर शूज, अब वो जूते पहना करता था। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन सूलेस, लेकिन इस तरह से और जो बच्चे थे जैसे कि रैग पिकर्स हैं जो कूड़े बिनते हैं, इन माई नेबरहुड जो नरेटर के पड़ोस में जो कूड़े बिनते हैं बच्चे, दे रिमेन सूलेस, वो अभी भी बिना जूते के बिना स्लीपर्स के जो है घूमते हैं। माई एक्वेंटेंसी विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, और अब जैसे कि इन बच्चों से उनकी एक्वेंटेंसीज बढ़ गई थी, उनकी जान पहचान हो गई थी। एक्वेंटेंस मीन क्या होता है कि कांटेक्ट या जो है जान पहचान, व्हेन यू नो समबडी, जब आप किसी को जानते हैं। तो जैसे इन बच्चों से उनकी जान पहचान हो गई थी विद द बेयरफुट ट्रैक पिकर्स, किससे? बेयरफुट ट्रैक पिकर से जो कूड़े बिनते थे, तो उनसे उसकी जान पहचान हो गई थी। दैट लीड्स मी टू सीमापुरी, और ये इनको मतलब नरेटर को कहाँ ले गई? टू सीमापुरी। सीमापुरी एक प्लेस का नाम है, वहाँ तक इनको ले गई। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। एक जो है जो पेरिफेरी मीन्स क्या होता है? आउटर एरिया, एक आउटस्कर्ट्स, दिल्ली का एक आउटस्कर्ट है जो कि आउटर दिल्ली में लोकेटेड है, और इस प्लेस का नाम सीमापुरी है जो कि दिल्ली से काफ़ी माइल्स अवे है, काफ़ी ज़्यादा दूर है वहाँ से। और वहाँ पे जाती मेटामॉर्फिकली मतलब क्या होता है कि एक प्लेस जो को सिम्बॉलिकली, जिसको सिम्बॉलिकली जो है एक किया जाता है, तो वहाँ पे क्या है कि जो नरेटर है वो रैग पिकर्स उनकी पहचान हो जाती है, और वो आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली जो है, जो कि मतलब कैपिटल सिटी से जो है, दिल्ली कैपिटल सिटी से जो है काफ़ी ज़्यादा दूर पे लोकेटेड है, और जिसको जो है एक वो सिम्बॉलिक किया जाता है, जिसको मतलब सीमापुरी नाम से उसको संबोधित किया जाता है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1977। और स्क्वैटर्स मीन्स क्या होता है कि अ पर्सन हु अनलॉफुली ऑक्युपाइज एन अनइनहैबिटेड बिल्डिंग और लैंड। जैसे क्या होता है कि कहीं बहुत सारी जगह पे अनयूज्ड लैंड पड़ी होती है, तो वहाँ पे जब कोई जो है इलीगली जो है कोई वहाँ पे उसे ऑक्युपाई करता है और वहाँ पे रहने लगता है, तो ऐसे लोग जो हैं स्क्वैटर्स कहलाते हैं। अब वो लैंड क्या है कि वहाँ पर वो यूज़ में नहीं आती, तो जो खाली जगह होती है तो वहाँ पे वो लोग इलीगली बिना कोई लीगल पास के जो है वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। तो दोज हु लिव हियर स्क्वैटर्स। तो सीमापुरी जो एक प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। 1971 में वहाँ पे वॉर हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, तो वहाँ उस टाइम पे जो बांग्लादेश से भाग करके इंडिया में आए हुए थे, तो दे वर लिविंग देयर, वो लोग वहाँ रहते थे। साहब फैमिली इज़ अमंग देम, साहब की भी फैमिली उन्हीं के बीच में रहती थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, और तब वो जो सीमापुरी जो एक ये प्लेस था, दैट वॉज द वेस्ट लैंड। तो वाइल्डरनेस में क्या होता है? वेस्ट लैंड, एक तरह की एक वेस्ट लैंड थी, मतलब जो कि यूज़ में नहीं आती थी। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, अभी भी वो कोई यूज़ में नहीं है, वेस्ट लैंड ही है, लेकिन अब वो खाली नहीं थी, क्योंकि सीमापुरी मतलब वो दैट वाज अ वेस्ट लैंड, स्टिल अभी भी वो एक वेस्ट लैंड थी, बट नाउ इट वाज नॉट एम्प्टी एज ऑलमोस्ट मीन्स वहाँ पे रैग पिकर्स की फैमिली रहा करती थी। तो मतलब अब जो है वो एक खाली जगह नहीं थी, बल्कि एक जो है वहाँ पर रैग पिकर्स जो है रहते थे। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पलिन, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। और यहाँ पे देखिए नंबर भी क्लियर किया गया है कि जो है वहाँ पे दैट वाज नॉट ऑलमोस्ट एम्प्टी, बिकॉज 10,000 रैग पिकर्स वर लिविंग देयर, क्योंकि वहाँ पे कितने रह रहे थे? लगभग 10,000 जो है रैग पिकर्स वहाँ पे रहते थे। एंड दे हैड स्ट्रक्चर्ड द मीन्स थैस्ड रूफ, उनके पास एक थैस्ड रूफ थी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि छप्पर और मड से बना हुआ एक घर। तो मड और जो है स्ट्रॉ से बने हुए जो है, जिसे हम कच्चा हाउस बोल सकते हैं, जिस पे जो है टीन या प्लास्टिक मटेरियल या जिसको टारपोलिन बोल सकते हैं, तो टारपोलिन की जो है वहाँ पे शीट और उससे जो है कवर करके उन लोगों ने अपना घर बना रखा था, जिसको हम लोग स्लम्स एरिया कह सकते हैं। तो वो एक स्लम्स एरिया वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड थी, बना ली गई थी उस वेस्ट लैंड में, उस जो है एम्प्टी लैंड में। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, और यहाँ पे वो लोग लगभग 30 साल से जो है वो लोग 30 ईयर्स से बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना कोई आईडी कार्ड के, बिना कोई पहचान के वहाँ पे रह रहे थे। विदाउट परमिट्स ऑल्सो, और वहाँ पे उनको कोई परमिशन भी नहीं मिली हुई थी। बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन।
तो वहाँ पे उन लोग के पास कोई आईडी कार्ड नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन और ना ही कोई परमिशन मिला हुआ था, लेकिन उन लोगों के पास राशन कार्ड्स थे जिससे उनको जो है दे गेट दियर नेम ऑन वोटर लिस्ट, और जिसकी वजह से उनका राशन कार्ड की वजह से उनका वोटर लिस्ट में नाम भी था। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, एंड दे वर इनेबल, वो जो है दे वर कैपेबल टू बाय द ग्रेन्स, क्योंकि जब उनके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड से उनको राशन मिल जाता था और उनका जो है वोटर लिस्ट में नेम भी आ गया था। तो ये सब जितने भी जो है यहाँ पे रैक पिकर्स थे, तो दे हैव द मीन्स प्रिविलेजेस टू गेट द राशन, ये लोगों को प्रिविलेजेस था टू गेट द राशन पाने के लिए। तो इस तरह से मतलब उनका वोटर लिस्ट में नाम भी हो गया था। तो दे वर एनेबल टू बाय द ग्रेन। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। एक जो है जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो है फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पहचान के कंपैरिजन में फूड जो है ज़्यादा इसेंशियल है फॉर अ पर्सन, फॉर अ ह्यूमन बीइंग। किसी ह्यूमन बीइंग के लिए जो है ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि उसकी पहचान उतनी ज़रूरी नहीं है। If at the end of the day we can feed our family and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers. फिर जब वो मतलब नरेटर वहाँ पे जाती हैं, तो दिस स्टेटमेंट दिस इज़ द स्टेटमेंट विच वॉज स्पोकन बाई अ वुमेन इन दैट ट्राइब। जो उस ट्राइब में एक वुमेन रहती थी, मतलब रैक पिकर्स ट्राइब में जो वहाँ पे वुमेन थी, वो ये इस बात को कहती है कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, कि अगर दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिली, हम लोग अपने फैमिली को खाना खिला पाते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और मतलब खाली पेट हम नहीं सोते हैं। एंड एकिंग स्टमक मीन्स क्या होता है कि दर्द या कराहते हुए जो है पेट के साथ जो है सोना। इट मीन्स क्या होता है विदाउट एनी मॉर्जल ऑफ फूड। तो जब कोई मीन्स विदाउट एनी बाइट ऑफ फूड और मॉर्जल ऑफ फूड, बिना किसी एक निवाले के जो है बेड पर जाना। तो ये मतलब वो लोग कहते हैं कि जो है अगर हम दिन के अंत तक अपने फैमिली को कुछ खिला करके सोने के लिए भेजते हैं और हम भूखे नहीं सोते हैं, वी वुड रादर लिव हियर, तो हम यहाँ पर ही रहना पसंद करेंगे, दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, बल्कि उस जगह नहीं जहाँ पर, उस खेत में जो है जहाँ पर इनको कोई भी अनाज नहीं मिलता था। मतलब ये लोग जो है ढाका की बात कर रहे हैं। ढाका में इन लोगों के पास फील्ड तो थे, लेकिन कोई ग्रेन इनको नहीं मिल पाता था। तो वहाँ की बात को कह रहे हैं कि अगर मतलब दिन के अंत तक अगर यहाँ पर इनको कुछ खाने को मिल जा रहा है और ये लोग भूखे नहीं सो रहे हैं, तो यहाँ पर ही रहना ये लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो एक दाना भी नहीं मिलता था। वहाँ तो ये लोग भूखे सोया करते थे, वहाँ तो इनको एक अनाज भी नहीं मिलता था। ये स्टेटमेंट है दैट इज़ सेड बाई अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी। ये उन महिलाओं ने बोला, उन औरतों ने बोला हु वर वियरिंग टैटर्ड साड़ी। टैटर्ड मीन्स क्या होता है टॉर्न, जो फटी हुई मतलब साड़ियाँ पहने हुए थे, मतलब उनके ड्रेस जो है वो सही ड्रेस नहीं थे, मतलब उनके जो है फटे पुराने कपड़ों में वो लोग थे। तो वो लोग इस बात को कहते हैं व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट दैट ब्यूटीफुल लैंड। और जब ये तब बात वो लोग बोलते हैं जब जो है नरेटर उनसे क्वेश्चन करती हैं कि वो लोग अपने घर को, अपने फील्ड को, जहाँ पे रिवर्स थी, जहाँ पे ग्रीन फील्ड्स थे, उन सबको छोड़कर वो लोग क्यों आए। तो इन रिप्लाई दे आंसर्ड इट, उन लोगों ने यही आंसर किया कि जहाँ पर जो है वो लोग उनको खाना मिलता है। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। और यहाँ पे वो आगे ये भी बताते हैं कि वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ पे भी उनको खाना मिलता है, जहाँ पे भी उनको फूड अवेलेबल होता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम देयर ट्रांजिट होम। तो यहाँ पे पिच मीन्स क्या होता है कि दे फिक्स, वहाँ पे वो अपने घर को बना लेते हैं, वहाँ पे अपने घर को फिक्स कर देते हैं, और वो घर क्या होता है उनका ट्रांजिट होता है। ट्रांजिट मीन्स क्या होता है टेम्पोररी, वो जो है परमानेंट नहीं होता है। तो ये उनका टेम्प्रेरी जो है हाउस होता है। तो जहाँ कहीं भी उनको जो है कुछ फूड या ग्रॉसरीज़ कुछ भी जो भी मिलता है उनको, तो वो वहाँ पे मूव कर जाते हैं और वहाँ पे थोड़े समय के लिए वहाँ पर वो रहने लगते हैं। एक मतलब जो है एक टेम्प्रेरी हाउस बना करके, टेंट अपना लगा करके वहाँ पर वो रहने लगते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और ये बच्चे क्या होते हैं इन्हीं सब जगहों में नोमैड्स की तरह से यहाँ पे आज रह रहे हैं, फिर कहीं और रह रहे हैं। तो इस तरह से घूमते घूमते ये बच्चे भी क्या होते हैं उनके साथ में ही बड़े हो जाते हैं, और दे बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ में क्या होते हैं सपोर्ट करने लगते हैं, वो पार्टनर बन जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, एक भागीदार बन जाते हैं अपनी फैमिली को सर्वाइव कराने के लिए।
तो इस तरह से जो है घूमते घूमते बच्चों की लाइफ जो है आगे बढ़ जाती है, और इस तरह से बच्चे जो है एक अपने पेरेंट्स के साथ में सर्वाइवल के लिए जो है उसके पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और फिर अगर सीमापुरी में सर्वाइव करना है, सीमापुरी में सर्वाइवल के लिए अगर कुछ है तो दैट इज़ रैक पिकिंग, सिर्फ वहाँ पे कूड़ा बिनना है, यही एक जो है वहाँ पर काम का तरीका। तो सीमापुरी में सर्वाइव करने के लिए जो एक मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन है वो सिर्फ क्या है, रैक पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। और जैसे ही थ्रू द ईयर्स मीन्स जैसे जैसे समय उसमें बीतता गया, बिकॉज दे हैड स्पेंट मेनी ईयर्स, सो दे बिकम ट्रेंड एट रैक पिकिंग एंड डिड इट वेल। तो जैसे एक फ़ाइन आर्ट क्या होता है, फ़ाइन आर्ट मीन्स क्या होता है कि जो हम ड्राइंग करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे जो है टैलेंट एक्वायर करते हैं। तो ये रैक पिकिंग का जो एक टैलेंट है उनके अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़ाइन हो गए, काफ़ी अच्छे हो गए, वो सभी जो है उनके अंदर एक कला आ गई, कूड़े को बिनने की एक उनके अंदर कला आ गई। और क्योंकि ये रैक पिकर्स के लिए क्या है, गार्बेज इज़ टू देम इज़ गोल्ड एंड फॉर द रैक पिकर्स इट इज़ एज प्रीसियस एज गोल्ड। उनके लिए जो है कूड़ा जो है इतना ही कीमती है जितना कि और लोगों के लिए गोल्ड होता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, क्योंकि ये कूड़ा बिन के ही ये उनकी क्या होती है, डेली ब्रेड की नीड जो है पूरी होती है। अ रूफ ओवर दियर हेड्स, और एक उनको अपने सर को ढकने के लिए एक छत मिलती है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, और यहाँ तक कि जब कभी जो है लीकिंग रूफ जो मीन्स क्या होता है कि जो है जो उनके रूफ में छेद हो जाता है जहाँ से वाटर लीक करता है, तो दैट मीन्स दैट इज़ ओनली द मीडियम टू कवर दैट, उसको कवर करने के लिए, उस रूफ को कवर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, दिस इज़ वन एंड ओनली मीन्स, ये उनके लिए क्या था कि यही माध्यम था जो उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता था। तो जैसे जो भी उनके जो है डैमेज्ड शीट होती थी रूफ़ की, और जो ये उनके और नीड होते थे, डेली नीड्स जो होती थी, ब्रेड जो होता था, इन सब की ज़रूरतें सिर्फ वो जो है वो उस गार्बेज से मतलब गार्बेज से ही पूरे होते थे। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन फॉर द चिल्ड्रन जो मतलब बच्चे होते हैं जो ये बिनते हैं, कूड़े बिनते हैं, उनके लिए क्या है, गार्बेज डंप्स वर मोर देन अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो बिनते हैं उनके लिए क्या है, ये गार्बेज डंप्स क्या है, ये सर्वाइवल से कुछ ज़्यादा ही है। मतलब वो बड़े जो हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो उनके लिए क्या है कि कूड़ा बिनना वो है अपने सर्वाइवल को पूरा करना, मतलब अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का एक माध्यम था। लेकिन बच्चों के लिए क्या था, बच्चों के लिए कुछ और है, बल्कि सर्वाइवल नहीं है। बच्चों के लिए क्या है कि इसमें आगे बताया जाता है, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब सेज हिज आइज लाइटिंग अप। अब बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए तो एकदम बिल्कुल ही मिस्ट्री है। मिस्ट्री मीन्स क्या होता है कि काफ़ी एक्साइटिंग है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो साहब कह रहा है कि आई सम टाइम फाइंड अ रुपी, मुझे कई बार जो है मतलब कभी कभी उसको 1 रुपये मिलता है, इवन अ 10 रुपी नोट, और कभी कभी तो 10 रुपये की नोट मिलती है कूड़े में। साहब सेज हिज आइज लाइटिंग अप, और इस बात को जब वो कहता है तो लाइटिंग अप मीन्स क्या होता है, ही सो जॉय एंड हैप्पीनेस। तो वो एक खुशी से जो है इस बात को बोलता है, मतलब उसकी आंखें जो है एकदम बिल्कुल एक चमक आ जाती है उसकी आंखों में। तो बहुत ही खुशी के साथ वो बोलता है कि जो है वो उसे मतलब कभी कभी तो 10 रुपये की नोट मिलती है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, अगर तुम्हें जो है अगर एक सिल्वर कॉइन मिलता है इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर में अगर तुम्हें एक कोई सिल्वर मतलब चांदी का सिक्का मिलता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो तुम शायद जो है स्क्राउंजिंग करना मतलब तब भी तुम स्क्राउंजिंग करना नहीं छोड़ोगे। मतलब क्या होता है कि सिल्वर कॉइन जो है वो किसी की नीड को पूरा कर सकता है। तो अगर जो है एज वन ऑफन फाइंड्स इवन अ सिल्वर कॉइन, अगर उसको सिल्वर कॉइन मिलता है गार्बेज में, तब भी ही केप्ट ऑन सर्चिंग होपिंग टू फाइंड मोर, तब भी उसकी आशा यही रहेगी कि वो जो है उस कूड़े के ढेर को जो है वो ढूंढता रहे और उसमें और जो है उसे और मिल जाए। तो फॉर देयर इज मीन्स यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तो वो स्क्राउंजिंग करने छोड़ेगा नहीं, बल्कि वो और ढूंढेगा कि उससे शायद और मिल जाएगा।
इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स। और इससे ये लगता है कि जो है बच्चों के लिए गार्बेज को बिनना इसका एक अलग ही उनके लाइफ में मतलब है, और जबकि उनके पेरेंट्स का एक अलग उसका मतलब है। उनके पेरेंट्स की सोच अलग है और बच्चों की सोच अलग है। बच्चों के लिए क्या है कि उसमें उनको कुछ न कुछ वैल्यूबल चीज़ें मिलेंगी, कुछ कभी उनको सिक्के मिल सकते हैं, तो वो उसको मानते हैं कि जो है वो एक बिल्कुल जो गार्बेज है वो उसमें छुपा हुआ कुछ ना कुछ जो है ऐसे एक्साइटिंग चीज़ें हैं। लेकिन पेरेंट्स के लिए क्या है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का एक माध्यम है। फॉर द एल्डर्स, इसीलिए बड़ों के लिए कुछ उसका और ही मतलब है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन जो है सुबह की ठंड की एक सुबह होती है जहाँ पर साहेब जो है खड़ा हुआ होता है बाय द फेंस्ड गेट, एक जो है एक दीवार के गेट के पास खड़ा होता है, द नेबरहुड क्लब। और वो कहाँ रहता है? नेबरहुड एक क्लब रहता है, वहाँ पर वो खड़ा होता है, वहाँ पर खड़ा रहता है। एंड वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। और वो जो है देखता रहता है कि दो यंग मैन जो हैं वो वहाँ पर टेनिस प्ले कर रहे हैं, तो उनको जो है खड़ा होकर के ये देखता रहता है। साहेब जो है यहाँ पे आई लाइक द गेम ही हम्स, और वो धीरे से बोलता है कि उसे ये गेम पसंद है, और कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और वो जैसे बहुत ही संतोष के साथ में, बिल्कुल एकदम संतुष्टि के साथ में उस गेम को देखता है खड़े होकर के। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स। और वो ये मानता है कि अगर उसे कोई मतलब उस आसपास कोई ना हो तो उस ग्राउंड में वो जाना चाहता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। और वो ये भी बताता है कि उसको जो है जो गेट कीपर है, जो उस क्लब का गेट कीपर है, उस ग्राउंड में उसे जाने देता है और उसको झूला भी झूलने देता है। ही लेट्स मी यूज़ द स्विंग। और जो गेट कीपर है उसको वो झूला झूलने देता है। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब जो है ही वॉज टू वियरिंग टेनिस शूज़, वो भी जो है टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, जो कि बहुत ही अलग ही दिख रहा था। ओवर इज डिस्कलर्ड शर्ट, क्योंकि उसने जो शर्ट पहनी थी वो फेडेड थी, वो एकदम टॉर्न फेडेड थी। और शॉर्ट्स जो उसने पैंट पहना हुआ था वो भी एकदम बिल्कुल डिसकलर हो गया था, वो बिल्कुल फेड हो गया था। और उस पर उसने जो है टेनिस शूज़ पहने थे। समवन गेव देम टू मी। और फिर वो बताता है कि उसको जो है किसी ने ये शूज़ दिया हुआ है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। और वो इस मतलब शूज़ को बताते जैसे वो मतलब इसको बताते हुए मतलब शूज़ की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि उसको ये शूज़ किसी ने दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम एंड डज नॉट बॉदर हिम। तो यहाँ पे द फैक्ट मीन्स क्या होता है कि रियलिटी तो ये थी कि जो शूज़ वो पहने हुए हैं दे आर डिस्कार्डेड, दे आर ऑफ नो यूज़, मीन्स दैट हैड बीन थ्रोन अवे। वो शायद किसी रिच बॉय ने, कोई जो है कोई अमीर लड़का होगा जिसको वो पहना हुआ होगा, लेकिन अभी उसने क्या किया, उस रिच फैमिली ने जो है या रिच बॉय ने जो है उस शूज़ को वो अब ज़्यादा मीन्स आगे नहीं पहनना चाहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू वियर दैट मोर एनी मोर, सो ही थ्रू दैट अवे, इसलिए उसने उस शूज़ को फेंक दिया। और शायद इसने जो है वहाँ से ले लिया होगा उस शूज़ को। और क्योंकि उसमें क्या था, देर वॉज अ होल बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि एक शूज़ में होल हो गया था, छेद हो गया था, और इसीलिए उसने जो है इसको फेंक दिया था। और ये होल जो है साहब को कुछ बॉदर नहीं करता है, साहब को परेशान नहीं करता है, साहब को कोई इंसल्ट फील नहीं होता, इसलिए साहब ने इसको पहनना शुरू कर दिया। और उसको ये जो है कहीं पर फेंका हुआ मिला था और इसलिए वो उसको उससे कोई दिक्कत नहीं थी और इसलिए उसने उसको पहनना शुरू कर दिया। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, एक लड़का जो कि क्या होता था, नंगे पैर घुमा करता था, जो विदाउट शूज़ घुमा करता था, और उसको अगर एक शूज़ मिल जाए जिसमें शायद विद अ होल, अगर उसमें शायद एक छेद भी हो, अगर उसमें एक छेद भी हो तो तब भी उसके लिए ऐसा लगता है कि जैसे उसका सपना सच हो गया हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन एक जो गेम, टेनिस का गेम जो वो देख रहा है बहुत ही उत्सुकता के साथ में, बहुत ही इंटेंट होकर के, बहुत ही जो है उत्सुकता के साथ उस गेम को वो देख रहा है, वो क्या है, वो दैट कैन नेवर बी फुलफिल्ड, वो चीज़ नहीं फुलफ़िल हो सकती। मतलब एक शूज़ को पहनना, शूज़ हैड बीन पार्सली फुलफिल्ड, शूज़ तो मतलब उसकी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन जो टेनिस खेलने की जो इच्छा है दैट नेवर बी फुलफिल्ड, वो पूरी नहीं हो सकती है। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। और
इस सुबह जो है जब नरेटर को वो मिला वन मॉर्निंग, तो नरेटर जो है नरेटर से जब वो राइटर से साहब मिला तो ही वॉज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, तो वो एक मिल्क बूथ पे जा रहा था, मतलब दुकान, दूध की दुकान पर जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में क्या था कि एक स्टील का कनिस्टर था, एक स्टील का जो है एक कंटेनर था। आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, और फिर उसने जो है नरेटर को बताया कि दैट ही हैड गॉट अ जॉब एट द नियर बाई टी स्टॉल, कि उसको एक पास की चाय की दुकान पर जो है जॉब मिल गई, एक नौकरी मिल गई है। एंड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और थोड़ी दूर पे वो पॉइंट करते हुए, हाथों से इशारा करते हुए दिखाता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और उसने बताया कि उसको उस काम के लिए जो है 800 रुपये मिलते हैं और खाने को भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे ये नौकरी पसंद है? आई आस्क, नरेटर ने राइटर ने पूछा वहाँ पे कि डज ही लाइक द जॉब, क्या उसको ये जॉब पसंद है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और तभी जो है नरेटर वहाँ पे रीड करती हैं कि जो एक केयर फ्री लुक होता है, केयर फ्री मीन्स क्या होता है कि जहाँ पर एकदम पूरी तरह से फ्रीली काम करता था, जहाँ पे कोई उसको चिंता नहीं होती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी, और पूरी तरह से संतुष्ट होकर के जिस काम को करता था, तो उसके चेहरे पे वो संतुष्टि नहीं दिखाई देती है, एक केयर फ्री लुक उसका नहीं दिखाई देता है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी स्लो लाइटली ओवर ही शोल्डर, और यहाँ पे जो क्या कहते हैं, द स्टील कनिस्टर, जो उसने स्टील कंटेनर जो लिया हुआ है वो शायद भारी दिखता है, भारी लगता है, किससे? प्लास्टिक बैग से, जिसको वो लेकर के कूड़ा बिनता था, उस कूड़े के बैग से भी वो जो स्टील कंटेनर वो भारी लगता है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर ही शोल्डर, भले ही उसमें इतना सारा कूड़ा भरा होता था लेकिन तब भी उसको वो हल्का लगता था स्टील के कंटेनर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब वैसे ही स्टील का कंटेनर जो है उसकी स्मॉलर साइज़ होगी उस प्लास्टिक बैग से जिसमें वो लोग कूड़ा फिल करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो वर्क था वो उसके अपने ओन अकॉर्ड था कि जितना देर तक उसे कूड़ा पिकिंग, मतलब रैक पिकिंग करना है उतनी देर तक रैक पिकिंग करेगा और फिर वो अपने घर को जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि वो बाउंड नहीं था काम करने के लिए, और यहाँ पे क्या है कि जब वो जॉब कर रहा है तो वो बाउंड है, और उसको कहीं ना कहीं जो है वो जो स्टील कनिस्टर है, स्टील जो कंटेनर है वो काफ़ी हैवी लगता है कंपैरेटिवली टू द प्लास्टिक बैग्स। द बैग वॉज हिज, क्योंकि जो बैग था, जो प्लास्टिक की बैग थे जिसमें वो लोग कूड़ा बिनते थे, वो उनका था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो ये कनिस्टर है, जो ये कंटेनर है, वो किससे बिलोंग करता है? टी शॉप के ओनर से बिलोंग करता है, क्योंकि ये उसका नहीं है। साहब इज़ नो लॉन्गर हीज ओन मास्टर, क्योंकि साहब अपने मर्जी का मालिक नहीं है, बल्कि उसे किसी के अंडर में काम करना पड़ता है। सो दिस इज़ द दीज आर द lines I had explained to you. This is the first part of the story. ये पहली पार्ट थी स्टोरी की जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया. See you in the next video for the second part of the story.